नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी बीते हफ्ते में आपने देखा कि रूसी दौरे पर थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्हें रशिया ने यहां पर सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का भव्य स्वागत यहां पर अपना इजहार की थी, उनकी बातें लिखी थी और कहा था रशिया में मुझे गॉड ऑफ ऑनर मिला। अब मैं आपको बता दूं कि ये रूसी दौरे से देश में तो ठीक है खुशियां मनी, लेकिन अमेरिका क्यों चिढ़ा? अमेरिका को तीखी मिर्ची क्यों लगी? क्या अमेरिका ये वो देश है जहां अपना फायदा देखता है, वहां ये देश अपने आप को पाता है? क्या अमेरिका किसी का सगा नहीं है? मैं आपको इसलिए बता रही हूं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर क्या वायरल हुई। दोनों की मुलाकात करते हंसते हुए तस्वीरें। अमेरिका उस फोटो से चिढ़ गया। अमेरिका ने धमकी दी है कि ऐसा करने से, रशिया जाने से, जहां हम नेटो शिखर सम्मेलन में यहां पर वाशिंगटन में हम इसको घटित कर रहे हैं, इस दौरे पर वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सम्मान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने रूस का दौरा करके गलत किया। इन दोनों की टाइमिंग एक नहीं होनी चाहिए थी। यानी कि कौन सी टाइमिंग? रशिया दौरे पर जो शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी गए थे उसके, और यहां पर जो वाशिंगटन डीसी में शिखर सम्मेलन, नेटो शिखर सम्मेलन हो रहा है, उन दोनों की टाइमिंग मैच नहीं होनी चाहिए थी। आपको बता दें कि विदेश मामले के प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका भड़का रहा है, अमेरिका धमकी दे रहा है। Ashley Tellis is probably sick of answering questions for a headline he didn't write about whether this was a good bet for our two countries. And he and I think, both see eye to eye that this is not a bet. People don't bet on each other. Imagine if we made that about relationships, friendships, marriages. I'm making a bet on this fiancé, and it's going to be win or lose. Either I'm going to win and it's a successful marriage, or I'm going to lose. Or this friendship. This is my buddy, but I'm going to make a bet on him. It's the wrong metaphor, and one that we should discard once and for all. Put it in the ground, lay it to rest. This is not a bet. It is a commitment. It is a relationship. It is true, it is trusting, it is tried, and it is tested. And you know, as the old cliche goes, the thing about love, which is the basis, I think, of most friendships and relationships, is love is the only thing you can give more of and receive more of it back. It's not a finite thing. It's not a win or lose. It's not a zero-sum game. It's important for us as Americans and as Indians to remember the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on kind of cynical calculation in the place of trusted relationship, the less we will get. But the more that we trust, not always what do I get out of this transaction today in exchange for something I'm giving, but that I give without thinking about that. Trust me, you will receive more back from both sides. That's certainly been my governing philosophy as ambassador and leader of this mission. It's also been what I've been trying to impress upon Americans. Because this relationship in Washington is a special one indeed. It is very wide. In Washington today, where very few things unite American political leaders, it is bipartisan, it is bicameral, and it is bi-branch. But as I also remind my Indian friends, while it is wide and it is deeper than it's ever been, it is not yet deep enough. That if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defensive battles trying to help this relationship ahead. अमेरिका ये दिखा रहा है कि हम सबसे ताकतवर हैं, तो इंडिया को झुकना पड़ेगा। क्या ये वही अमेरिका है दर्शकों, जो रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया का साथ छोड़कर यूक्रेन के साथ आया, उसके बाद भारत ने साथ दिया तो वो तब से भारत से जुड़ा हुआ है? क्या ये वही अमेरिका है जो भारत की बढ़ती ताकत को देखकर ये कह रहा है कि अमेरिका इज फेवरेबल टू इंडिया एंड इंडिया इज फेवरेबल टू अमेरिका? अमेरिका नीड्स इंडिया एंड इंडिया नीड्स अमेरिका। क्या ये वही अमेरिका है जो दोस्ती को सिरे से खारिज करके केवल फायदे का सौदा करता है? पुतिन ऐसा नहीं करते हैं, और यही वजह है कि पुतिन की तस्वीरें पीएम मोदी के साथ पुराने जमाने में जब दोनों नेता जवान थे उस वक्त वायरल हुई। और देखिए, यहां पर बातचीत की जाए तो अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि रशिया के दौरे से अमेरिका को जो घाटा हुआ है उससे पीएम मोदी के भारत को फर्क पड़ सकता है। और देखिए, ये भी चेतावनी अमेरिका दे रहा है। अमेरिका कह रहा है कि रूस को इसका सौदा करना होगा। और बता दें आपको, चाइना को भी अमेरिका ने आंख दिखाया है। चाइना को यह कहकर आंख दिखाया गया है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देना आपको भारी पड़ेगा। खैर,
रूस को केवल साथ देना पीएम मोदी का ये भारी पड़ रहा है अमेरिका को। अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया उन मामले में आगे बढ़े। आपको बता दें, ये जो तमाम तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसमें अमेरिका चाहता है कि रूस जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। आपको मैं बताती हूँ कि 4 दिन पहले रूस के लिए क्या कहा अमेरिका ने। कहा, जो बाइडेन ने कहा, इस जंग में रूस नहीं यूक्रेन जीतेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर रूस के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो झूठ बोलते हैं। पुतिन केवल झूठ बोलते हैं। मैं सच बोलने वालों पर बिलीव करता हूं, भरोसा करता हूं, मैं काम करने पर भरोसा करता हूं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन झूठ कहते हैं। ये जो बाइडेन का बयान 3 दिन पहले का है, जो मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, भारत स्ट्रांग हो रहा है हर मामले में। द्विपक्षीय वार्ता रूस के साथ समझौतेपूर्ण रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भर भर कर पीएम मोदी को तारीफ किया है। वहां पर रूसी सेना ने जो भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया वो तो देखते ही बना। इसके साथ रूस में भारतीय नृत्य का प्रदर्शन, ये दिखाता है कि रशिया पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को जानता है और वो जानता है कि कैसे एक परम मित्र का स्वागत अपने देश में, स्वदेश में होना चाहिए। अमेरिका ने कभी पीएम मोदी का ऐसा भव्य स्वागत नहीं किया। जो बाइडेन केवल दिखावे वाले हैं। आप ध्यान दीजिए दर्शकों, पिछले हफ्ते क्या लिखा था अमेरिकी रिपोर्ट ने। अमेरिकी रिपोर्ट ने लिखा था कि इस्लाम के लिए भारत में यहां पक्षपात होता है। क्या यहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है? अमेरिका कौन होता है देश के आंतरिक मामलों में अपनी टांग अड़ाने वाला? लेकिन अमेरिका ने ये रिपोर्ट छापी थी। इसके साथ पॉलिटिक्स पर भी अमेरिका मुखर रहता है, जबकि भारत उतना मुखर अमेरिकी मामलों में नहीं रहता है। इन सब बातों से एस जयशंकर को खूब घृणा होती है और एस जयशंकर ऐसे विदेश मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री की नगीने तो हैं ही, लेकिन भरे स्टेज पर उनको पता है कि कैसे अमेरिका को आंख दिखाने हो और कैसे चाइना पाकिस्तान को आंख दिखाना हो। अमेरिका ये सोचने की कतई जरूरत ना करे कि केवल वही एक ताकतवर देश है। आपको बता दें कि क्या कह रहे हैं एरिक गैरसिटी। देखिए, यहां पर तमाम तरीके से बातचीत में लगातार प्रवक्ताओं का बयान सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिल्ली को दी गई चेतावनी पर अब भारत सोचने पर मजबूर हो गया है। भारत सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, किस तरीके से बाइडेन प्रशासन धमकी दे रहा है। और इसी तरीके से बता दें आपको, अमेरिकी राजदूत एरिक गैरसिटी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा कि भारत को अमेरिका की दोस्ती को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये साफ और सीधी तरीके से वार्निंग है। ये भारत के प्रधानमंत्री को वार्निंग है, अमित शाह को वार्निंग है और यहाँ पर एस जयशंकर को क्या वार्निंग है। आप ऐसे देश को वार्निंग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता है। अमेरिका की यह हालत इतनी नहीं है जो भारत जैसे लोकतंत्र का मुकाबला कर पाए और कह रहा है अमेरिका की ये चेतावनी के रूप में समझे। भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी दौरे पर पीएम मोदी को नहीं जाना चाहिए था जब नेटो शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है संपन्न, और इससे हम काफी नाराज हैं। इसके साथ सुन लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सोल्विन ने चेतावनी दी है, दीर्घकालीन साझेदारी के लिए रूस पर इस तरीके से दाव लगाना ठीक नहीं है। इंडिया ने कोई रूस पर दाव नहीं लगाया। इंडिया केवल रूस से दोस्ती को दिखा रहा है। इंडिया जानता है कि रशिया उसका बहुत बड़ा हेल्पर है। रशिया ऐसा देश है जो अपना फायदा छोड़कर, अगर इंडिया मुसीबत में है और रशिया को उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और उस यहाँ पर घाटे के सौदे को उबारने के लिए रशिया जाना जाता है। और यही वजह है कि रशिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की अच्छी दोस्ती है और ये बरकरार सालों सालों से है। 1 साल की ये बात दर्शकों नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका को ये बात रास नहीं आ रहा है और पीएम मोदी को बाइडेन अपने प्रशासन के थ्रू धमकियां दिलवाने लगे हैं, चेतावनी दिलवाने लगे हैं। बाइडेन के दिमागी हालत को देखकर भी कई बार ऐसी खबरें छपती है कि बाइडेन उल जलूल हरकत करने लगते हैं। आप देखिए, अभी इटली जब गए थे जो बाइडेन, तो कैसे उन्होंने ग्रुप फोटो के टाइम पर उनकी एक वीडियो वायरल हुई। ग्रुप फोटो जब होने लगा तो तुरंत वो उठकर अलग दिशा में चले गए और किसी और को इशारा कर रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी उनके हाथ को खींचती है और इधर उनके साथ फोटो क्लिक कराती है। खैर, ये तमाम बातें हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो यहाँ पर बाइडेन अभी कुछ अपने
अनुसार इंडिया को चलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कभी भी भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर रूस से क्या संबंध भारत की तुड़वाने पे कोशिश में अमेरिका लगा हुआ है ताकि भारत कमजोर हो जाए। और यही सब बातों के मद्देनजर आज यहां पर बता दें आपको, नई दिल्ली में एक बैठक हो रही है और इसकी अध्यक्षता यहां पर खुद एस जयशंकर ने कहा है कि मैं करूंगा। कुछ दिन में ये जो बैठक होगी, आज इस पर चर्चा हो रही है। बैठक का जो अपडेट है वो भी सामने आने वाला है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है, इस पर भारत सरकार पूरी प्रबलता के साथ खड़े होती दिखाई दे रही है। तो ये चेतावनी तमाम थी। नाटो सम्मेलन में रूस यात्रा की चर्चा हुई और अब अमेरिका भारत और रशिया के संबंधों में छींटाकशी कर रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए। आपने सुना होगा कैसे एरिक गारशेटी ये कह रहे हैं इंडिया नीड्स अमेरिका, अमेरिका नीड्स इंडिया। तो क्या केवल फायदे के लिए अमेरिका को तीखी मिर्ची लगी है? ये तमाम बातों पर लगातार चर्चा हो रही है देश के अंदर। और अब जो भी विकल्प निकलता है, एस जयशंकर क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे अपडेट आने पर। लेकिन फिलहाल आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखिए। शुक्रिया आपका।